یہ کہانی ایک راز کی مانند ہے، ایک تجسس جس کا جواب آپ کی روح کو سکون دے گا اور ایک حقیقت جو آپ کو حیرت میں ڈال دے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی خواہشات کو رد کرتے ہوئے صرف اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، اللہ اور مولا علی علیہ السلام کی معرفت۔ آپ نے شاید سنا ہو کہ وہ دنیا سے بے نیاز ہو کر درویش بن جاتے ہیں، مگر کیا آپ نے کبھی ان کے راستے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ وہ کس مقام پر ہوتے ہیں جہاں عقل و فہم بھی ہار جاتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو خود کو ایک درویش اور قلندر کہلاتے ہیں؟ قلندر یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے، ایک ایسی زندگی کا فلسفہ جو نہ صرف دنیا سے بیزاری پر مبنی ہے بلکہ ایک گہرے عشق اور اللہ کی معرفت کی طرف بڑھتا ہے۔ قلندر دراصل وہ شخص ہوتا ہے جس نے دنیاوی لذتوں کو ٹھکرا کر اپنی زندگی کو روحانیت، فقر اور عشق علی علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا ہو۔ قلندر کا یہ راستہ ایک انتہائی پیچیدہ روحانی سفر ہے جس میں بے خودی اور اللہ کی قربت کی تلاش کی ایک گہری جدوجہد شامل ہوتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں قلندری طرز زندگی کی تو ہم صرف ایک درویش کے لباس یا کسی خاص رسم و رواج کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس کی روحانیت اور عشق کی بات کر رہے ہیں جو نہ صرف اس کی ظاہری حالت کو بلکہ اس کے دل کی گہرائیوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ قلندر وہ نہیں جو دنیا کے تمام مال و دولت کو چھوڑ کر جھیلوں اور پہاڑوں میں زندگی گزارتا ہے، بلکہ وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنی روحانیت کو اتنا بلند کر لیا ہو کہ دنیاوی لذتیں اس کے لیے کچھ نہیں رہ جاتی۔ اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ اتنا گہرا اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے رب کے حکم پر راضی ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی خواب یا اسی عالم بالا کی حقیقت ہے جس تک صرف منتخب افراد ہی پہنچ پاتے ہیں؟ ایسی حقیقت کا راز مولا علی علیہ السلام کی ذات میں چھپا ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولی کی روشنی نے تمام صوفیاء کو قلندری راستے کی حقیقت سکھائی۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا، الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے، اور یہی وہ نظریہ ہے جس پر قلندری سلسلہ قائم ہے۔ قلندر ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے مولا علی علیہ السلام کی نسبت میں پیش کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جو فقر کا فلسفہ پیش کیا وہ نہ صرف دنیاوی خواہشات کو ترک کرنے کا پیغام تھا بلکہ ایک بلند تر روحانی آفاق کو چھونے کا راستہ تھا۔ یہ سب کلمات ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طرح حضرت علی علیہ السلام کی روحانیت نے پوری دنیا کو ایک نئی راہ دکھائی، اسی طرح قلندری زندگی کا مقصد علی علیہ السلام کی روشنی کی پیروی کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، یہ قلندر جو کچھ بھی ہے آخر وہ حقیقت میں کیا ہے؟ کیا یہ وہ شخص ہے جس کا ایک قدم زمین پر ہوتا ہے اور دوسرا قدم آسمانوں میں ہوتا ہے؟ وہ کیوں اپنی زندگی کو دنیاوی معاملات سے بیگانہ رکھتا ہے؟ اس کے اندر کیا ایسی روحانی طاقت چھپی ہوتی ہے جو اسے ہر روز ایک نئے سفر پر لے جاتی ہے؟ قلندر کا راستہ دراصل ایک عشق حقیقی کا راستہ ہے، اور یہ عشق کسی انسان سے نہیں بلکہ مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہے۔ قلندر اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنی روحانیت اور روحانی حقیقت کو اتنی شدت سے جیتا ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ کو مکمل طور پر اللہ اور مولا علی علیہ السلام کی محبت میں محو کر لیتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو اس کے اندر کی دیوانگی کو جنم دیتی ہے۔ قلندر کے لیے دنیا محض ایک عکس ہے، ایک فانی چیز جو کبھی قیمتی نہیں ہو سکتی۔ اس کی زندگی میں اصل مقصد روحانی سچائی اور اللہ کا قرب ہوتا ہے، اسی لیے وہ دنیا کے تمام لذتوں اور خواہشات کو ترک کر کے مولا علی علیہ السلام کے در کی غلامی میں محو ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ولی ہونا کوئی بڑی بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کا تمام وجود علی علیہ السلام کی نسبت میں پوشیدہ ہے۔ قلندر کی حقیقت کو سمجھنا ایک گہری سائنسی حقیقت اور روحانی تجربے کی مانند ہے۔ یہ کوئی سادہ موضوع نہیں۔ جب آپ کسی قلندر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نہ صرف اس کی ظاہری زندگی بلکہ اس کی روحانیت اور عشق کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ اندر سے جتنا نرم اور بے خود ہوتا ہے اتنا ہی باہر سے مضبوط اور کامل ہوتا ہے۔ اس کی روحانی طاقت اسے ہر لمحے میں اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور اس کے ہر عمل میں مولا علی علیہ السلام کی روشنی چھپی ہوتی ہے۔ قلندر کے لیے فقر یا غلامی ایک عذاب نہیں بلکہ ایک روحانی معراج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلندر کسی بھی حالت میں دنیا کے کسی عیش و آرام کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا اصل مقصد روحانی حقیقت کو سمجھنا اور مولا علی علیہ السلام کی محبت میں غرق ہونا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی ذات میں اس کی دنیاوی اور روحانی زندگی کا تمام راز چھپا ہوا ہے۔ قلندر کے لیے مولا علی
अलैहि السلام का दर वो मुकाम है जहाँ इंसान को इश्क हकीकी की रोशनी मिलती है और ये रोशनी उसे अल्लाह तक पहुँचाती है। उसकी जिंदगी की हर सुबह, हर शाम, हर लम्हा अली की मोहब्बत से जुड़ा होता है। वो जानता है कि जब तक वो अली अलैहिस्सलाम की निस्बत में महव रहता है, उसकी जिंदगी में रूहानियत का एक नया रंग बिखरता रहता है। कलंदर इसी रोशनी में रहकर अल्लाह और अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा मकसद हासिल करता है। तो फिर ये कलंदर आखिर है क्या? एक रूहानी रास्ता जिसके अंदर अली अलैहिस्सलाम का अक्स हो, वो जो दुनिया को महज एक मादा समझकर उससे बेगाना हो जाता है, या फिर वो हकीकत जो सिर्फ एक रूहानी दरवेश की जिंदगी की गम्माज होती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आपको इस सफर में मिलेगा। ये दुनिया बड़ी अजीब जगह है। यहाँ लोग इक्तदार के पीछे भागते हैं, दौलत के लिए लड़ते हैं, शोहरत के पीछे अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। लेकिन तारीख के औराक में एक ऐसी हस्ती का जिक्र बार बार आता है जो दुनिया की उन तमाम चीजों को हकीर जानकर एक ऐसी राह पर निकल पड़ता है जो आम लोगों की समझ से बाहर होती है। वो शख्स कौन होता है? वो कलंदर होता है, जो कुल अंदर होता है। ये कोई आम दरवेश नहीं, ना कोई आम फकीर। ये वो हस्ती है जो अल्लाह के इश्क में अपनी हस्ती को फना कर देता है और जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ इश्क अली अलैहिस्सलाम की दीवानगी धड़कती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जुनून क्या है? क्या ये आम लोगों की समझ से बाहर है, या ये वो राज है जो सिर्फ वलियों के वली को हासिल होता है? कहते हैं जब किसी पर इश्क का पहला लम्हा वारिद होता है तब वो खुद को बदलता हुआ महसूस करता है। आम लोग किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, किसी ख्वाब के पीछे दौड़ते हैं, किसी मंजिल की तलाश में निकलते हैं, मगर कलंदर का इश्क आम लोगों जैसा नहीं होता। कलंदर जब इश्क में डूबता है तो वो मादी दुनिया के खौल से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि हर चीज फानी है, मगर एक चीज जो हमेशा कायम है वो है अल्लाह और उसके वली मौला अली अलैहिस्सलाम की जात। वो समझ जाता है कि दुनिया में हर रास्ता किसी न किसी मोड़ पर खत्म हो जाता है, मगर इश्क अली अलैहिस्सलाम का रास्ता वो वाहिद रास्ता है जो जन्नत की तरफ जाता है। इसीलिए जब कोई कलंदर बनता है तो वो सबसे पहले खुद को फना करता है। वो अपनी जात को मौला अली अलैहिस्सलाम के दर पर कुर्बान कर देता है और एक नए मुकाम पर कदम रखता है, जहाँ दुनिया का हर खौफ, हर वसवसा, हर गम, हर आजमाइश उसके लिए बेमानी हो जाती है। यही वो मुकाम होता है जहाँ कलंदर की दीवानगी शुरू होती है। और ये दीवानगी कोई आम दीवानगी नहीं, ये वो दीवानगी है जो मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के इश्क से पैदा होती है। वो मोहब्बत जो हर हद को पार कर जाती है, वो फकर जो किसी के समझने से बालातर है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया फकर मेरा फखर है, तो उन्होंने हमें इस हकीकत का राज बता दिया था कि दुनियावी लज्जतों में सुकून नहीं, बल्कि हकीकी इज्जत और सुकून सिर्फ फकर में है। यही वो लम्हा है जब कलंदर समझ जाता है कि अगर इज्जत चाहिए तो फकर इख्तियार कर, अगर मोहब्बत चाहिए तो मौला अली अलैहिस्सलाम से इश्क कर, और अगर हकीकत का दरवाजा खोलना है तो खुद को फना कर दे। कलंदर ना किसी दुनियावी ताकत से डरता है, ना किसी मादी ख्वाहिश का गुलाम होता है। वो हंसता है जब दुनिया वाले रोते हैं, वो रोता है जब दुनिया वाले खुश होते हैं। वो आम इंसानों से मुख्तलिफ हो जाता है क्योंकि उसके दिल में मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का समुंदर मौजज़न होता है। जब एक आम इंसान देखता है कि एक शख्स दुनिया की हर ख्वाहिश को छोड़कर इश्क के रास्ते पर निकल चुका है तो वो हैरान रह जाता है। वो कलंदर को पागल कहता है, उसे दीवाना समझता है, उसे मजजूब कहकर मुस्तरद कर देता है। मगर हकीकत ये है कि यही दीवानगी असल हकीकत है। यही वो कैफियत है जो तमाम औलिया कराम के सीनों में मौजज़न थी। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह हों या हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह हों या बाबा फरीद, सब ने यही रास्ता इख्तियार किया था। सब ने इश्क अली अलैहिस्सलाम में खुद को फना करके कलंदर बनने की सआदत हासिल की। यही वजह है कि कलंदर के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट होती है, एक ऐसी रोशनी जो आम इंसानों को नजर नहीं आती। वो दुनिया वालों की नजर में फकीर होता है, मगर हकीकत में वो अल्लाह के सबसे करीबी बंदों में शामिल होता है। जब कलंदर अपनी जिंदगी को मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में फना कर देता है तो एक ऐसा लम्हा आता है जब उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता।
वो अल्लाह से बातें करता है, वो राजों को जानने लगता है, वो दुनिया की हकीकत से आगाह हो जाता है। इसीलिए कलंदर का रास्ता आम लोगों के लिए समझना आसान नहीं। वो जो दुनिया के मालो दौलत में मगन होते हैं, वो जो शोहरत के पीछे दौड़ रहे होते हैं, उनके लिए कलंदर सिर्फ एक दरवेश या फकीर होता है। मगर हकीकत ये है कि यही दरवेश, यही फकीर हकीकत में अल्लाह के राजों को जानने वाला होता है। यही वो लम्हा है जब कलंदर अपनी असल मंजिल पर पहुंचता है। यही वो मुकाम है जहां उसके वजूद में सिर्फ एक चीज बाकी रह जाती है, इश्क़ अली। यही वो राज है जो हर वली अल्लाह ने पाया, हर दरवेश ने समझा और हर कलंदर ने कबूल किया। यही वो हकीकत है जिसकी झलक मौला अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नजर आती है। यही वो राज है जिसे समझने के बाद एक आम इंसान कलंदर बन सकता है। मगर जो इस हकीकत को नजरअंदाज कर दे, वो कभी हकीकत की रोशनी को नहीं पा सकता। कलंदर की हकीकत को अभी समझना बाकी है। ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से एक और दरवाजा खुलता है। वो दरवाजा जहाँ कलंदर खुद को फना करके हमेशा के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम की निस्बत में दाखिल हो जाता है। वीडियो में अब हम इस राज को खोलेंगे जो सिर्फ कलंदरों को मालूम होता है। वो राज जो आम इंसानों से छुपा हुआ है, वो हकीकत जो सिर्फ वलियों की जुबान से निकलती है। इश्क का एक असूल है, जो जितना ज्यादा डूबेगा वो उतना ही हकीकत के करीब पहुंचेगा। मगर इस हकीकत तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपनी जात को फना करना पड़ता है। यही वो मंजिल है जहां कलंदर की दास्तान मुकम्मल होती है। मगर इसी के साथ वो एक नए राज की चाबी भी पा लेता है। बहुत से लोग समझते हैं कि फकर का मतलब है कि इंसान सब कुछ छोड़कर जंगलों में निकल जाए, दुनियावी जिंदगी को तर्क कर दे और एक दरवेश की तरह रहने लगे। मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। फना का मतलब मिट्टी में मिल जाना नहीं, बल्कि मिट्टी से ऊपर उठ जाना है। ये वो मुकाम है जहाँ कलंदर सिर्फ दरवेश नहीं रहता, बल्कि वो एक ऐसा वजूद बन जाता है जो दुनिया के खेल से आजाद होकर हकीकत की सरहद पर खड़ा होता है। ये वो लम्हा है जब कलंदर को मालूम होता है कि उसके लिए अब कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो दुनिया की आजमाइशों को एक खेल समझकर देखता है और मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम में हर चीज का हल ढूंढ लेता है। फना का सफर जब अपने इख्तिताम को पहुंचता है तो कलंदर की जुबान पर एक ही जिक्र बाकी रहता है, अली अली अली। यही वो लम्हा है जब दुनिया वाले कहते हैं ये शख्स मजजूब हो गया है, ये दुनिया से निकल गया है, ये पागल हो गया है। मगर हकीकत में यही वो मुकाम है जहां इंसान इंसान नहीं रहता, बल्कि एक राज बन जाता है। वो एक ऐसा राज होता है जो किसी की समझ में नहीं आता, जो किसी की अक्ल में नहीं बैठता। यही वजह है कि जब भी कोई कलंदर मस्ती में आकर अली अलैहिस्सलाम का नाम लेता है तो वो आम इंसानों की नजर में दीवाना हो जाता है। मगर यही दीवानगी हकीकत की सबसे बड़ी दलील बन जाती है। यही वो राज था जिसे हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह ने समझा था। यही वो हकीकत थी जिसे हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने पाया था। यही वो दीवानगी थी जिस पर हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह नाज करते थे। मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब अनल हक का नारा बुलंद किया तो लोग हैरान हो गए। वो कहने लगे ये तो अपने आप को खुदा कह रहा है। मगर वो नहीं जानते थे कि ये नारा दरअसल फना फिल्लाह की आखिरी मंजिल थी। ये वो राज था जिसे समझने के लिए दिल में अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत चाहिए, वरना अक्ल इस हकीकत तक नहीं पहुंच सकती। यही वो रास्ता है जिस पर चलते हुए कलंदर अपनी जात से निकलकर सिर्फ और सिर्फ अली अलैहिस्सलाम के रंग में रंगा जाता है। बहुत से लोग कलंदर बनने का दावा करते हैं, मगर हर कोई हकीकी कलंदर नहीं होता। हकीकी कलंदर वही होता है जो मौला अली अलैहिस्सलाम के दर से जुड़ा हो, जिसके फकर में अली अलैहिस्सलाम की महक हो, जिसकी मस्ती में अली अलैहिस्सलाम की झलक हो, जिसकी दुनिया सिर्फ अली अलैहिस्सलाम की पहचान में डूबी हो। ये वो लोग होते हैं जो हर हाल में मुस्कुराते हैं, जो दुनियावी आजमाइशों को हंसी में टाल देते हैं, जो ज़ाहिरी फकीरी में भी सबसे अमीर होते हैं, क्योंकि उनके पास वो दौलत होती है जो किसी खजाने में नहीं मिलती, इश्क़ अली अलैहिस्सलाम की दौलत। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है,
क्या ये सब महज अल्फाज हैं या वाकई कोई ऐसा राज है जो सिर्फ कलंदर जानते हैं? यही वो सवाल है जो हर उस इंसान को जुनून में मुब्तला कर देता है जो हकीकत की तलाश में होता है। यही वो जुस्तजू है जो एक आम इंसान को कलंदर के दरवाजे तक ले आती है। यहाँ से आगे क्या है? यहाँ से आगे वो दरवाजा है जिसके पीछे हकीकत छुपी हुई है, मगर ये दरवाजा सिर्फ उनके लिए खुलता है जो इश्क में फना होने का हौसला रखते हैं। ये दरवाजा खोलना है तो अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में खुद को फना कर दें और फिर देखें कि हकीकत कैसे आपके कदमों में बिछ जाती है। मैं हूं एजाज काज़मी और आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, वो जगह जहां तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल पर नक्श की जाती है, जहां मार्फत के दरवाजे खुलते हैं, जहां रूहानी दास्तानें हकीकत का रूप धारती हैं और जहां हर लफ्ज सुनने वाले को एक नए जहान में ले जाता है।